HLA মিলে গেলেই আর লাগবে না রক্ত থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের। প্রতি মাসেই রক্তের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীর অভিভাবকদের। প্রতি মাসে প্রয়োজন হয় থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের রক্ত। এবার HLA মিলে গেলেই আর লাগবে না থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের রক্ত। থ্যালাসেমিয়া রোগ নির্মূল করার লক্ষ্যে দিল্লির গিফট ফাউন্ডেশন এবং পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের থ্যালাসেমিয়া ইউনিটের সহযোগিতায় পুরুলিয়া শহরের একটি ধর্মশালায় অনুষ্ঠিত হল মুখের লালা রস সংগ্রহ কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে প্রায় 110 জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগী এবং তার মা বাবা আত্মীয় স্বজনদের মুখের লালা রস সংগ্রহ করা হয়। দিল্লি থেকে আগত গিফট ফাউন্ডেশনের কর্ণধার মদন চাওলা জানান, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম পুরুলিয়াতে এই কর্মসূচি নেওয়া হলো। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের HLA পরীক্ষা করা হবে। এই পরীক্ষায় যদি 50% মিলে যায় তাহলে সেই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীকে HLA দেওয়া হবে এবং রিপোর্ট আসতে সময় লাগবে প্রায় 3 মাস। যদি মিলে যায় তাহলে ওই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগী প্রায় 4 মাসের মধ্যেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে আর কোনোদিনই তার রক্তের প্রয়োজন হবে না। আসিফ আনসারি রিপোর্ট, এখন জঙ্গলমহল নিউজ, পুরুলিয়া। করা যায় ওটাকে আমরা বলি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। যদি একটা বাচ্চার সাকসেসফুলি মানে একদম ঠিকঠাক ভাবে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হয়ে যায় তাহলে এটা আশা করা যায় যে বাচ্চা সম্পূর্ণভাবে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত হয়ে যাবে আর ভবিষ্যতে আর রক্ত লাগবে না। কিন্তু ওটা করার জন্য একটা টেস্ট করতে হয় যেটাকে বলা হয় HLA ম্যাচিং। যেভাবে ব্লাড গ্রুপ ম্যাচ করে ব্লাড দেওয়া হয়, এই HLA ম্যাচিং যদি ম্যাচ করে যায়, এটা মা বাবা নিজের ভাই বোন কাকা মামা মাসি এদের টেস্ট করলে ওদের সাথে যদি ম্যাচ করে যায় তখন ভবিষ্যতে ওই ম্যাচিং ডোনারকে নিয়ে ওদের বোন ম্যারো একটা সামান্য একটা স্যাম্পল রক্তর মতোই স্যাম্পল নেওয়া হয়, ওটা দিয়ে ওই বাচ্চার মধ্যে ওই বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করে দিলে যদি ওটাকে সব ঠিকঠাক ভাবে হয়ে যায়, সরকার এটাতে অনেক সাহায্য করে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটাতে অনেক সাহায্য করে। আর কিছুগুলো হাসপাতাল আছে যে হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা অনেকটা কম খরচে হয়ে যায়, আমাদের রাজ্যেও আছে, অন্যান্য রাজ্যতে হয়। তো এই চিকিৎসা আর এই প্রোগ্রামটাকে নিয়ে আমরা আজকে এখানে সবাই জমা হয়েছি। এই টেস্টটা হবে, এটা ব্লাড টেস্ট নয়, এটা একটা সিম্পল আমাদের যেভাবে করোনার সময় মুখ থেকে স্যাম্পল নেওয়া হতো ওইভাবে একটা স্যাম্পল নেওয়া হবে আর কিছুদিনের মধ্যে এই রিপোর্টগুলো আমরা পেয়ে যাব। যাদের ম্যাচিং হয়ে যাবে তাদেরকে নেক্সট স্টেপ করতে হবে সেটা আমরা বলে দেব, ঠিক আছে? তো এটার জন্যই আজকে, ঠিক আছে? কিছু না বুঝতে পারলে আমাকে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। थैंक यू। नमस्ते। सर ने बताया है कि मेरा नाम मदन चावला है और मैं दिल्ली से आया हूँ। एक NGO का फाउंडर हूँ। NGO का नाम है गिफ्ट। गिफ्ट को हम पूरा एक्सपेंड करते हैं तो बनता है ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाउंडेशन फॉर थैलेसीमिया। इसको नाम से ही पता चलता है कि हम थैलेसीमिया के लिए काम करते हैं। और थैलेसीमिया के अलावा बच्चों के जो खून की बहुत सारी बीमारियाँ और होती हैं, जैसे ब्लड कैंसर है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल है, एनीमिया है, हर प्रकार के बच्चों की कोशिश करते हैं कि मदद करें। हमारी जो NGO है वो पूरे इंडिया में बच्चों की मदद करती है। पुरुलिया में पहली बार आए हैं और जो हमारे आने का मकसद है, सर लोकल लैंग्वेज में बेहतर समझा चुके हैं। मैं सिंपल दोबारा रिपीट करूँगा कि HLA टाइपिंग जो होता है एक सिंपल सा टेस्ट है। हम आपके मुंह के अंदर से सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को हम जर्मनी या अमेरिका भेजते हैं। आज जो हम किट्स लेके हैं वो अमेरिका भेजेंगे एंड हमें अमेरिका से टिपिकली रिपोर्ट 3 महीने में मिलती है। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है, मार्केट में जाए तो महंगा पड़ता है। हमारा पर्पस ये है कि अधिक से अधिक बच्चे हमेशा के लिए ठीक हो जाएँ। तो जब इस टेस्ट की रिपोर्ट आती है उससे हम देखते हैं कि जो बच्चा है उसका HLA एक प्रकार का DNA होता है कि उसका जो DNA है वो परिवार में किसी सगे भाई बहन से या पेरेंट्स से मैच करता है कि नहीं होता। अगर करता है तो आपका जो बच्चे का ट्रांसप्लांट है ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट का मतलब जो हॉस्पिटल का खर्चा है लगभग फ्री हो जाता है। सरकार की स्कीम चलती है, सरकार कोलकाता में सॉरी इधर पुरलिया में कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो फ्री करते हैं, लगभग फ्री करते हैं। जो परिवार पे है खर्चा वो थोड़ा सा हॉस्पिटल के पार का आता है, तो कहने का मतलब लगभग 10% खर्चा करना पड़ता है आपको, 90% इज टेकन केयर ऑफ। ठीक है।
है। और जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बड़ी सिंपल से जानकारी दूंगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, मिथ में गलत धारणाएं हैं। ये कोई सर्जरी नहीं है, किसी प्रकार की चीराफाड़ी नहीं होती है उसमें। हम सिंपल जो पेशेंट का जो मैचिंग का डोनर होता है, चाहे छोटा भाई है, अगर 1 साल का भाई है उसको भी हम ब्लड ले सकते हैं और 50 साल तक के किसी भी इंसान का ले सकते हैं। हम करते क्या है कि जो डोनर होता है उसे डोनेशन से 3 दिन पहले एक सिंपल से इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन जैसे हम डायबिटीज़ में खुद लगाते हैं, आप चाहें तो खुद लगा सकते हैं, आप चाहें तो हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। इसे बोलते हैं GCSF, टेक्निकल नाम है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। उस इंजेक्शन का पर्पज़ क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड में स्टेम सेल्स बनते हैं, जो बच्चे को चलाते हैं, उन स्टेम सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो मान लो हमारी बॉडी में पहले 2 लीटर स्टेम सेल्स है, हमें 300 ml चाहिए उसमें से, तो जो इंजेक्शन से वो 2 लीटर में 2.5 लीटर बन जाएगा। उस 2.5 में से हम 300 निकालते तो डोनर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। निकालते कैसे हैं? डोनर को जिस दिन डोनेशन होगी उसे बुलाएंगे, उसे बेड पर लेटाएंगे, आराम से वो टीवी देखेगा, आराम से खाना खाएगा, उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी। उसकी हाथ पे या थाई पे एक निडल लगाएंगे, जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही उसको वहाँ बेड पे लेटना है। लेटने का टाइम ब्लड आपका 15 मिनट लगता है, इस पर अंदाजन आपको 2 घंटे लगते हैं। और 2 घंटे में आपके सामने मशीन चलती है, उस मशीन में आप देखेंगे कि आपका ब्लड निकल रहा है वहाँ पर। उसी मशीन में ब्लड को वो प्रोसेस करते हैं, उसमें स्टेम सेल अलग, जैसे अपने दही को हम मक्खन में छाछ बनती है, उसमें से मक्खन निकलता है, तो वैसे ही स्टेम सेल्स अलग हो जाएंगे और आपका ब्लड आपको वापस चढ़ जाएगा। सो 2 घंटे बाद आपने कुछ भी नहीं खोया, डोनर की बॉडी से कुछ भी नहीं निकला। वो आराम से अगले दिन अपना स्कूल जाए, काम करने जाए, रेस्ट करे, उसकी मर्जी है। उसको कुल मिला के 2-3 घंटे के हॉस्पिटल में रहना है। आज तक दुनिया में किसी भी डोनर को किसी भी प्रकार का लंबा रिस्क नहीं हुआ है, तो डोनर के लिए बिल्कुल सेफ है। अब जब डोनर के स्टेम सेल्स बड़े आसानी से निकालिए, तो अब डोनर ट्रांसप्लांट क्या होता है, वही स्टेम सेल्स जैसे हम बच्चे को ब्लड चढ़ता है आपके आंगन में, वैसे ही बच्चे को ब्लड की तरह चलाएंगे आपके सामने। मुश्किल से 15-20 मिनट रहते हैं और ट्रांसप्लांट हो जाता है। सो ट्रांसप्लांट कोई मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो डॉक्टर्स के लिए ये चिंता का विषय है, पेशेंट का पेशेंट कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को ध्यान करना पड़ता है कि पेशेंट उसके बाद जो है वो अच्छी हालत में रहे। सो ट्रांसप्लांट के 15-20 से 21 दिन तक डॉक्टर्स की जो मेहनत बहुत बढ़ जाती है बच्चे को सेफ रखने के लिए, बच्चे को ये देखने के लिए कि बच्चे के अंदर जो दूसरे स्टेम सेल चढ़े हैं उसकी बॉडी अच्छे से एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद जो है आप टिपिकली हॉस्पिटल के अंदर अंदाजन 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक रहते हैं। बच्चे के साथ माता या पिता में से एक आदमी जो है वो हॉस्पिटल में ही रहेगा पूरा एज में अंदाजन। और उसके बाद जब आपको डिस्चार्ज करते हैं तो हॉस्पिटल के आसपास आपको लगभग 3 महीने और रहना पड़ता है, चाहे वो हॉस्पिटल कोलकाता का है, चाहे पुरुलिया का है, चाहे दिल्ली का है, चाहे बॉम्बे का है, चाहे अमेरिका का है। ये जो प्रोसेस है पूरे वर्ल्ड में सेम होती है। तो ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि आपको कम से कम 4 महीने जो है अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं, क्योंकि बच्चे के दोनों माता पिता एक अगर बच्चे के साथ कमरे में रहेगा तो दूसरा अस्पताल में रहेगा, ताकि कुछ इमरजेंसी में दवाई चाहिए, ब्लड चाहिए, कोई मिलने आ रहा है, तो आपको दोनों पेरेंट्स को लगभग 4 महीने के लिए अपने घर से अलग रहना पड़ता है। सिंपल। तो ट्रांसप्लांट मुश्किल नहीं है, पैसे का इंतजाम भी हो जाता है, नहीं हो तो हम मदद करते हैं, हमारी एनजीओ भी मदद करती है। आपको सिर्फ जो चाहिए वो ये कि अपने बच्चे को ठीक करने की विल पावर, इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। बाकी सब कुछ जो है वो पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है। इलाज की प्रक्रिया भी मुमकिन है, दवाइयों का बंदोबस्त भी हो जाता है, फाइनेंस का बंदोबस्त भी 90 से 95% हो जाता है। तो ये सारे तकलीफों से आपको छुटकारा देता है अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, अच्छे से सैंपल दें, और हम कोशिश करेंगे आपको सैंपल मैच हो जाए, उसके बाद की प्रोसेस बहुत आसान है। ये जो आज का प्रोग्राम है पुरुलिया में, ये देवन महतो गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से किया जा रहा है। मेरा नाम मदन चावला है और मैं दिल्ली NCR से आया हूँ। मैं एक संस्था का फाउंडर हूँ। संस्था का नाम है गिफ्ट, यानी कि
ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाउंडेशन फॉर थैलेसीमिया। ये संस्था पूरे हिंदुस्तान में थैलेसीमिया और इसके अलावा जितने भी बच्चों के ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ब्लड कैंसर है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल है, इस तरह की बीमारियों में बच्चों की मदद करते हैं। जो आज 24 मई 2025 को मेरा पुरुलिया आने का मकसद है वो ये कि इस शहर में या इसके आसपास के शहर के जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनका HLA टेस्ट किया जाए। HLA टेस्ट एक प्रकार का DNA टेस्ट है जो मार्केट में बहुत महंगा होता है। आज हम ये टेस्ट बिल्कुल फ्री कर रहे हैं और इस टेस्ट का करने का जो मकसद है वो ये है कि हम चेक कर सकते हैं इस टेस्ट की रिपोर्ट के माध्यम से कि क्या इन बच्चों के लिए कोई इनके मैचिंग का HLA वाला स्टेम सेल डोनर है, ताकि इन बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सके। फ़िलहाल भारत में बोन मैरो ट्रांसप्लांट इस थैलेसीमिया का एकमात्र स्थायी इलाज है। ये कैंप हम वेस्ट बंगाल में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी जाएंगे। हम हिंदुस्तान के लगभग 21 स्टेट में पहले जा चुके हैं। वेस्ट बंगाल में पहला कैंप है, पर जहाँ जहाँ पर हमें रिक्वेस्ट है कि हम ज़रूर जाएंगे।